Hello, my dear students. Today I am going to start a new topic, new lecture number 4. The subject is energy auditing and management, and the topic is the climate change. This topic is in the curriculum of energy auditing and management, 7th semester electrical engineering, IKG-PTU. It's an elective subject, but somewhere in diploma as well as BTech, it's a regular subject right now, energy auditing and management. Somewhere the name of subject is energy conservation, somewhere the name is only energy auditing, somewhere the name of subject is energy management in other universities. But right now I am just follow the syllabus of elective of energy auditing and management, electrical engineering branch, 7th semester course, IKG-PTU Kapurthala, according to the IKG-PTU Kapurthala syllabus. So guys, before that I just suggest you, if you are electrical engineering students in anywhere across the country and in PTU, Punjab or other state universities, you can subscribe my channel and share with your friends. And also if you are the faculty member of any universities across the country, you can subscribe my channel and share with your colleague and with your friends, because after few days in the month of October, I will came with other informative topics also from other universities. First I cover the syllabus of IKG-PTU, then I will go for the others. तो अभी जो कि PTU का सिलेबस चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 15th अक्टूबर तक I complete the overall topics related to IKG-PTU 3rd, 5th and 7th semester, because first year is getting late. Around 20th October is the last date of the admission across the country for first year engineering. So the electrical subject of basic electrical engineering will start after 15 October, and before that I complete the entire syllabus of IKG-PTU. And so the subject, all subject covered by me in first PTU, then other universities also. Some subjects are similar like circuit analysis, control system. The lectures will be going on in the preparation mode, and it may be uploaded within 1 week or 2 weeks. It will start. It's not a big deal, and it's also helpful for some students, those who are studying in 7th semester or 5th semester and having backlog in 3rd semester and 4th semester, like electrical engineering, circuit analysis, basic electrical engineering, electrical machine, control system, power electronics, etc., etc. And here I just came on the topic, and the topic is climate change. I already suggest you, if you have any problem, you can refer these books written by some very good renowned writers in particular subjects, and you can follow the material available on website, Bureau of Energy Efficiency, energy auditor course. So you can also follow that, because the syllabus is directly copy and pasted by the Bureau of Energy Efficiency syllabus of energy auditors or energy managers. So here I am going to start. The first is climate change. According to this topic, human activities, particularly the combustion of fossil fuels, have made the blanket of greenhouse and water, vapor, carbon dioxide, methane, ozone, etc. around the earth thicker. The resulting increase in global temperature is altering the complex web of systems that allow life to thrive on earth, such as rainfall, wind patterns, ocean currents and distribution of plant and animal species. ये जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है, तो उसको आप लोग देखिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या होता है। जनरली जो सनलाइट हमारे अंदर आता है, हमारे अर्थ पे जो आ रहा है, इसके कारण क्या होता है, जनरली सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। कुछ तो जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, हम लोग जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बट मोस्ट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म इट। जो हमारा, हमें वी नो ऑलरेडी दैट हमारा जो 70% जो अर्थ का एरिया है, इट विल कवर्ड बाय द वाटर। सी लेवल जो है, वाटर लेवल है, सारा कुछ है। तो वो वाटर क्या करता है, वाटर रिफ्लेक्शन के साथ साथ उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करता है, और वो ऑब्जर्वेशन जो एब्जॉर्ब करता है सी, वो वापस रेडिएट नहीं हो पाता है। सेकेंड आपका है, सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पासेज थ्रू द एटमॉस्फेयर, some is absorbed and re-emitted in all direction by greenhouse gas molecules.
द इफेक्ट ऑफ दिस इज वार्म द अर्थ सरफेस एंड द लोअर एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर है, अर्थ सरफेस है आप देख रहे हैं, और इंफ्रारेड रेडिएशन इज एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस, इस कारण से होता है सारा का सारा। जो भी इसके प्रॉब्लम्स है सारी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में। आपको एक एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। आपको ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है, या एक्सप्लेन द क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहे हैं, या ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको यही सारा कुछ लिखना है इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब हम जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेज का अफेक्ट एंड द कार्बन साइकिल, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, लाइफ ऑन अर्थ इज मेड पॉसिबल बाय एनर्जी फ्रॉम द सन। ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे सनलाइट पॉसिबल नहीं है वहां पे हम लाइफ को नहीं कर सकते कि लाइफ पॉसिबिलिटी वहां पे है, विच अराइव्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट्स। विजिबल लाइट्स के फॉर्म्स में आता है। अबाउट 30% ऑफ सनलाइट इज स्कैटर्ड बैक इनटू स्पेस बाय आउटर एटमॉस्फेयर एंड द बैलेंस 70% रीचेज द अर्थ सरफेस। इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका 30% प्रेजेंट सनलाइट है वो स्कैटर्ड हो जाता है एटमॉस्फेयर के थ्रू, और जो आपका 70% है वो डायरेक्टली आपके अर्थ सरफेस पे आता है, विच रिफ्लेक्ट इट इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। द एस्केप ऑफ स्लो मूविंग इंफ्रारेड रेडिएशन इज डिलेड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज। जो ग्रीन हाउस गैसेज होता है इसके कारण ये डिले हो जाता है। थिकर ब्लैंकेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप मोर इंफ्रारेड रेडिएशन एंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर। अब वो जो ग्रीन हाउस गैस का जो एक थिकर लेयर पड़ा हुआ है अपने एटमॉस्फेयर पे, वो क्या करता है, जो वापस इंफ्रारेड को जाना चाहिए वो जा नहीं पाता, और इस कारण से जो आपका अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज मेकअप ओनली 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर, but they act as a blanket around the earth or like a glass roof of a greenhouse and keep the earth 30 degree warmer than it would be otherwise. It would be otherwise without greenhouse gases, earth would be too cold to live. एक्चुअल में क्या करता है, जैसे आप लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस का नुकसान है, वैसे इसका एक फायदा भी है। फायदा क्या है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं होगा तो जो हमारा ये जो ग्रीन हाउस गैसेज के कारण जो रिफ्लेक्शंस होगा नहीं होगा, तो वो सारा का सारा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो आपका जो अर्थ जो थोड़ा सा वार्म होता है, जिस कारण से हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, कई सारे स्पीसीज जी रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस के खत्म होने। ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ग्रीन हाउस लेयर थिकर आर एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कंबशन ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज। हम जो डे बाय डे फॉसिल फ्यूल्स और कोल और नेचुरल गैसेज जो बर्न कर रहे हैं, इसके कारण जो हमारा ग्रीन हाउस का जो लेयर है वो डे बाय डे थिकर हो रहा है। बाय एडिशनल मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम फार्मिंग एक्टिविटीज एंड चेंज इन लैंड यूज एंड बाय सेवरल मैन मेड गैसेज दैट हैज ए लॉन्ग लाइफ इन द एटमॉस्फेयर। वो जो हमारे जो मैन मेड, एक तरह से आप कह सकते हैं जो हम पोल्यूटेंट बना रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उस पोल्यूटेंट के कारण क्या हो रहा है, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, धीरे धीरे थिकर हो रहा है। अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो सम डेज क्या होगा कि पूरा का पूरा ग्रीन हाउस लेयर जो है वो खत्म हो जाएगा, और ग्रीन हाउस लेयर खत्म होते ही जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो जो हमारा सराउंडिंग अर्थ जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो इतना कोल्ड हो जाएगा कि सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद है द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज इज हैपनिंग एट एन अलार्मिंग रेट। ये जो है जो ग्रीन हाउस गैसेज जो है हैपनिंग वो अलार्मिंग रेट पे है। इफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन कंटिन्यू टू ग्रो एट करेंट रेट्स, it is almost certain that the atmosphere level of carbon dioxide will increase twice or thrice from pre-industrial level during the 21st century. एक बहुत बड़ा अलार्मिंग है ये हमारे लिए कि हाउ टू सेव द अर्थ। इस सब पे बहुत सारे क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन हो रहे G20 में, उसके बाद UN में भी कई बार चर्चा हुआ इस पे कि कार्बन एमिशन को हम कम से कम करें, और जो भी सारी चीज़ें हैं क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंटल एक्टिविटी हम लोग यूज कर सकते हैं वो हम लोग करें। उसके बाद जो है आपका अब क्या है, इसके बाद इवन ए स्मॉल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर विल बी accompanied by change in climate such as cloud cover, precipitation, wind pattern and duration of season. If an already highly crowded and stressed earth, millions of people depend on weather patterns such as monsoon rains to continue as they have in the past, even minimum change will be disruptive and difficult. ये जो लाइन कहा गया है इसके कारण क्या हो रहा है आजकल, जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है, जो हमारा मानसून था पहले जिसपे हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है इंडियन इकोनॉमी का, वो क्या अफेक्ट हो रहा है इसके थ्रू, और ग्रीन हाउस गैसेस और इन सब के कारण क्या हो रहा है, आपका मेन पैटर्न जो पूरा का पूरा जो आपका रेन पैटर्न है वो चेंज हो चुका है।
सम पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, गुजरात जो है वो क्या ड्राई एरिया में आ रहे हैं, जिधर बारिश नहीं होनी चाहिए, लाइक राजस्थान एंड जो कुछ और एरियाज हैं वहाँ पे हेवी रेनफॉल हो रहा है। जहाँ टोटली पहले बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, लाइक पंजाब, हिमाचल और दिल्ली साइड में, यूपी साइड में, वहाँ पे बारिश थोड़ी सी कम हो रही है। मतलब पूरा का पूरा जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, जिसके कारण पूरा का पूरा जो हमारा फर्टिलिटी या एग्रीकल्चर पूरा डिपेंड करता था, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। जरूरी नहीं है कहीं पे हेवी रेनफॉल हो रहा है, कहीं पे ड्राई हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। मतलब इन सब चीजों के कारण जो हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा टोटली अनबैलेंस्ड हो चुका है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। Humans are burning coal, oil and natural gas at a rate that is much faster than the rate at which these fossil fuels were created. This is releasing the carbon stored in the fuels into the atmosphere and upsetting the carbon cycle. तो आपका जो ये है करंटली कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर आर राइजिंग बाय ओवर 10% एवरी 20 ईयर्स। अब क्या है, जैसे पहले आप देखते थे कि पहले जो अपना जैसे फूड किचन में जो यूज होता था, जनरली लोग गांव में जो है वो नॉर्मल वुड से या कोल से खाना बनाते थे। धीरे धीरे उन सब चीज़ों को कंट्रोल किया गया है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी नेचर फ्रेंडली है, तो उन्होंने भी क्या किया, कुछ उज्ज्वला योजना और इसके थ्रू एलपीजी कुकिंग गैसेस फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको मोटिवेट किया है। गवर्नमेंट गिव सब्सिडाइज रेट गैस सिलेंडर ऑल्सो टू द सिटीजन्स टू मिनिमाइज द रेट ऑफ कार्बन एमिशन। जो उसमें कार्बन एमिशन होता है एलपीजी में एज कम्पेयर टू कोल और बाकी जो हम वुड और कोई भी चीज बर्न करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग, उससे कम होता है ये सारा चीज। तो उसी चीज के लिए हम लोग ये जनरली इस सब चीजों को करते हैं। उसके बाद जो है आपका सबसे मेन है करंट एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब जो करंट एविडेंस हुआ है हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज का, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट क्या है, साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स, हरिकेन्स are occurring more frequently and floods and droughts are more intense than before. This increase in extreme weather events cannot be explained away as random events. Means हम क्या देखते हैं, सबसे जो करंट एविडेंस है क्लाइमेट चेंज का, जो हमने इतने सारे पोल्यूशंस क्रिएट किए हैं एटमॉस्फेयर में बाय डेवलपिंग द इंडस्ट्रीज एंड ऑल, इन सब चीजों के कारण जो सारा का सारा मैंने ये सिस्टम किया है, उसके कारण आप देख रहे हैं कि पहले क्या होता था, हम लोग सुनते थे कि 5 या 6 साल में कोई हरिकेन या कोई स्टॉर्म या कोई साइक्लोन आया। बट अब हम क्या देख रहे हैं, फ्रीक्वेंटली कभी आपके इंडियन ओशियन में आ जाता है, कभी बे ऑफ बंगाल में आ जाता है, कभी अमेरिकन में आ जाता है, कभी प्रशांत महासागर में आ जाता है, कभी अमेरिका के पास, कभी ऑस्ट्रेलिया के पास। तो जितने भी कोस्टल कंट्रीज है दे आर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय द साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स, हेरिकेन्स उनके आसपास आ रहे हैं, जिस कारण से पूरा का पूरा जो हमारा, जैसे हम आप देखिए जैसे आपका उड़ीसा है, मतलब फ्रीक्वेंटली आ रहा है उड़ीसा के पास और ये बे ऑफ बंगाल के पास और सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड ऑल्सो, वहां पे भी हम लोग देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली ये सारी चीजें हो रही है। पहले क्या मतलब मल्टीपल टाइम में साल 2 साल 4 साल 5 साल पे आ गया, अब ऐसा कोई भी साल आपका नहीं जाता जिस साल में आपका कोई ना कोई साइक्लोन नहीं आता है। और आप हर मंथ में देख लीजिए कि पूरे वर्ल्ड को अगर आप वर्ल्ड स्पेक्ट्रम को उठा के देख लेंगे, एनवायरमेंटल स्पेक्ट्रम, तो आपको वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ये साइक्लोन, स्टॉर्म और हरिकेन्स, इन तीन में से एक चीज हर मंथ कुछ ना कुछ बिगर इम्पैक्ट डालते हुए नजर आएगा। आगे है दिस ट्रेंड्स टुवर्ड्स मोर पावरफुल स्टॉर्म एंड हॉटर longer dry periods is predicted by computer model. Warmer temperature means greater evaporation and a warmer atmosphere is able to hold more moisture and hence there is more water aloft that can fall as precipitation. Similarly, dry regions are prone to lose still more moisture if the weather is hotter and hence this leads to more severe droughts and desertification. आपने देखा होगा 2013 की बात है, जब आपका वो केदारनाथ वाला जो इंसिडेंस हुआ था, उसमें क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड ऑन दैट प्लेस, हमने एक नेचुरल रिवर के आगे एक डैम बनाया। डैम तो चलो हमने बना लिया, वाटर को स्टोर कर लिया, लेकिन हमें क्लाइमेट चेंज हुई, इसके कारण से क्या हुआ कि जो स्नो था वो काफी ज्यादा वहां पे मेल्ट आउट हुआ और उसके बाद एक हेवी रेनफॉल वहां पे हो गया। हेवी रेनफॉल के कारण क्या हुआ, वो जो डैम था उसके अंदर शायद अर्थक्वेक भी आया, क्योंकि वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था वहां पे, उस कारण से वो डैम पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। और हमारे पास इतना भी टाइम उसने नहीं दिया कि वी गिव सम अलर्ट मैसेज टू केदारनाथ टू प्रोटेक्ट द पीपल। बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें, बहुत ज्यादा त्रासदी हुई थी वो। तो ये क्या है, एक प्रकृति का एक जीता जागता उदाहरण है कि इफ वी डैमेज द इन्वायरमेंट, डेफिनेटली जो इन्वायरमेंट है
that will be react in the terms of cyclone, storms, hurricanes, कुछ ना कुछ वो हमें या earthquake इसके फॉर्म में हमें कहीं ना कहीं से नजर आएगा। फ्यूचर इफेक्ट जो है, फ्यूचर इफेक्ट्स में क्या है, इवन द मिनिमम प्रेडिक्टेड शिफ्ट इन क्लाइमेट for the 21st century are likely to be significant and disruptive. Predictions of future climate change are wide-ranging. The global temperature may climb from 1.4 to 5.8 degrees Celsius. The sea level may be rise from 9 to 88 centimeter. पहले जब हम लोग पढ़ते थे, जब 10th में 12th में, तब हम लोग जनरली रूम टेम्परेचर को 19 डिग्री मेजर करते थे कि 19 डिग्री सेल्सियस जो है वो रूम टेम्परेचर लेते थे। बट आज के डेट में हम जो रूम टेम्परेचर लेते हैं फॉर द कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए, दैट विल बी 21 डिग्री सेल्सियस। क्यों लेते हैं? क्योंकि डे बाय डे ड्यू टू द ग्रीन हाउस क्या जाएगा, ऐसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है दैट विल राइज। दस उसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारा जो सी का लेवल है वो अभी देखो 9 to 88 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। धीरे धीरे अगर ये सी का लेवल बढ़ेगा तो जितने भी आपके जो कॉन्टिनेंट्स और द्वीप्स हैं, सारे स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे पानी के अंदर डूब जाएंगे। एंड कोस्टल एरिया जो बिग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड ऑल्सो बॉम्बे, चेन्नई, ये सब जो है, अगर वाटर लेवल इसी तरह से इंक्रीज होता रहा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग तो वो सारा का सारा डूब जाना है। Thus, increase in sea level, the centuries are expected to range from significant to catastrophic. This uncertainty reflects the complexity, interrelatedness, and sensitivity of the natural system that make up the climate. तो वो सारी चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये जो 21st सेंचुरी है इसमें अगर हमने नेचर को पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं किया तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है फ्यूचर इम्पैक्ट में। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो हमारे ये काफ़ी वेल नोन पर्सन है अन्ना हजारे जी, उनका एक गांव है जिस गांव को उन्होंने खुद ही डेवलप किया है। तो हमारे एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल के रिसर्च पर्सन है डॉक्टर एस.एस. राव। एस.एस. राव ने कहा है कि वी हैव टू गेट बैक इन द ईयर ऑफ 1981। जो 1981 में जो हम रिसोर्सेज यूज करते थे उसको उन्होंने एक बेंचमार्क लिया है कि उस लेवल पे अपने को जाना पड़ेगा प्रकृति को बचाने के लिए। अदरवाइज जिस डे बाय डे हम लोग सारा चीजें डेवलपमेंट कर रहे हैं फॉर हीटिंग एंड कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हमारा सारा का सारा सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद जो है जैसे सेवर स्टॉर्म एंड फ्लडिंग, द मिनिमम वार्मिंग फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर इज मोर देन ट्वाइस द 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज दैट हैज अकर्ड सिंस 1900 and the earlier increase is the already having marked consequences. Extreme weather events are predicted by the computer model, are striking more often and can be expected to intensify and become still more frequent. A future of more severe storms and floods along the world, increasingly crowded coastline is likely. अब जो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो हमारा पूरा का पूरा नेचर है, अगर हमने उन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था एयर पोल्यूटेंट के दौरान, कि ये सारी जो गैसेज हम लोग जनरेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, तो ये सारी चीज़ें हमें डे बाय डे देखने को मिलेगी और इस कारण से पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है दैट विल बी टोटली डैमेज्ड। उसके बाद क्या है? फूड शॉर्टेज है। अब फूड शॉर्टेज की बात जहाँ तक है, अब आपका क्या है, ऑल द रीजनल एंड लोकल इफेक्ट्स में डिफर वाइडली। A general reduction is expected in potential crop yield in most tropical and subtropical regions. Mid-continental areas such as the United States, grain belt and vast area of Asia are likely to become dry. क्या होगा जब वेदर धीरे धीरे सारा चेंज करेगा तो इन सब एरिया में ड्राई हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। तो जो हमारे ग्रेन्स है, जो हम लोग अनाज उपजा रहे हैं, गेहूं या राइस या जो भी हमारे डेली यूज के लिए क्रॉप्स हम लोग उगा रहे हैं, वो डे बाय डे क्या होगा? खत्म हो जाएगा। सब सहारन अफ्रीका वेयर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिलाइज solely on rain, the yield would decrease dramatically even with minimum increase in temperature. Such changes could cause disruption in food supply in a world is already affected with food shortage and famine. अब आप खुद बताइए कि जितने सारे पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या हमारा खाना उतना सुरक्षित रहा? आज के डेट में नहीं है सुरक्षित। इवन कि सम पार्ट ऑफ द पंजाब, आपको पता है कि कुछ एरिया जो पंजाब है जहाँ के जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, वो ड्रिंकेबल नहीं है, उसको आप पी नहीं सकते। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप उससे खेती कर सकते हैं?
तो वो हालत हो रही है कि हमने प्रकृति के साथ इतना ज़्यादा मजाक कर लिया है, उसमें इतने सारे रिसर्च कर लिए पेस्टिसाइड्स के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में एक लौकी में कोई स्टिक सुई लगा के उसको हम बड़ा कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इस सब से क्या हो रहा है, फूड का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगा इन फ्यूचर। जो हमारे जो जो हम इतने सारे केमिकल्स यूज करते हैं ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर, उसके कारण क्या होगा, हमारा का पूरा खेत जो है वो बंजर हो जाएगा एक तरह से, उसमें कुछ भी नहीं हम लोग उगा पाएंगे। आप देख रहे हो आज के डेट में कई जगह पे लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ? क्योंकि उसके थ्रू हम अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करें और हम उस अपने एग्रीकल्चर लैंड को बचाएं। उसके बाद जो आपका वो है ड्विंडलिंग फ्रेश वाटर सप्लाई, यही चीज जो मैं डिस्कस कर रहा था। सॉल्ट वाटर इंट्रूशन फ्रॉम राइजिंग सी लेवल विल रिड्यूस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई। दिस इज a major concern since billions of people on earth already lack access to fresh water. Higher ocean level already are contaminating underground water sources in many parts of the world. आपको पता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप मालदीव कभी घूमने जाएंगे, मालदीव इज सच अ नाइस प्लेस ओनली फॉर ए वीक। आप एक वीक आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि है तो बहुत खूबसूरत, आइसलैंड बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मालदीव के पास ड्रिंकेबल वाटर भी नहीं है। उसके पास सारा का सारा जो पीने का पानी है वो इंडिया के थ्रू दिया जाता है उसको, और अदर कंट्री से वो एक्सपोर्ट करती है ड्रिंकेबल वाटर। उसके पास पीने का पानी नहीं है। इवन आप गल्फ एरियाज में जाएंगे, वहां पे प्रॉपर ड्रिंकेबल वाटर आपको नहीं मिलेगा। यू आर सो लकी कि यू आर इंडियन और आपके पास इतने सारे रिवर्स अभी अवेलेबल है और आपके पास ड्रिंकेबल वाटर की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट अदर कंट्रीज में इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मेंटेन द ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। उसके बाद क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड endangered species, some 25% of mammal and 12% of birds, may become extinct over the next few decades as warmer conditions alter the forest, wetlands and rangelands they depend on, and human development blocks them are migrating elsewhere. अभी क्या होता है, आप लोग कई जगह पे देखते हैं, इंडिया में अभी भी कई जगह से माइग्रेटेड बर्ड आते हैं। घना जो आपका भरतपुर में, वहां पे पहले हम लोग बचपन में क्या देखते थे, अगर बाय डिफॉल्ट कोई एनिमल, डॉग या कोई भी एनिमल ऐसे मर गया तो कहीं ना कहीं से जो है वो गिद्ध वगैरह आ जाते थे और उसको खत्म कर देते थे। मतलब एक नेचुरल उनका पूरा का पूरा चेन था कि अगर कोई एनिमल खत्म हुआ तो गिद्ध आएगा, वो खा के खत्म कर देगा। बट आज के डेट में आप क्या देख रहे हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड पे और हाईवे पे। आप देख रहे हैं कभी कि आप जो है उसमें कहीं आपको गिद्ध नजर आ रहा है? क्यों नहीं आता नजर? या बाज नजर आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा नजर? उसका रीजन ये है कि जब हमारे एग्रीकल्चर लैंड में हम लोग जो एनिमल्स जो हमें नुकसान करते थे, लाइक नील गाय, लाइक रैट्स, चूहे वगैरह जो नुकसान करते थे, हमने उसको मारने के लिए केमिकल्स यूज किए। हमने उसको जहर दे के मारा और वो पॉइजनस मीट खा के वो जानवर धीरे 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 खत्म होने लगे। हमने उनके लिए जो उनका नेचुरल फूड था उसको खत्म कर दिया, वो सारा का सारा खत्म हो गया। तो क्या हुआ, एक बर्ड हमारे बीच से निकल गया। आज वो संरक्षित एनिमल में आता है, गिद्ध जो आता है वो संरक्षित रिजर्व्ड एनिमल के फॉर्म में आता है। हम उसको चाहते हैं बचाने के लिए, हम उसकी अलग अलग एक उसकी स्कीम्स निकाली है गवर्नमेंट ने, अलग अलग उसके लिए छोटे छोटे हम लोग वो पक्षी वाले जो उद्यान से वो बनाए हुए, जहां हम उसको प्रॉपरली सेव कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। उसके बाद है इंक्रीज्ड डिजीजेज। हायर टेम्परेचर आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड द रेंज ऑफ सम डेंजरस वेक्टर borne disease such as malaria which already kills 1 million people annually, most of them children. अब आप खुद सोचिए कि ये जो मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर? इसका रीजन है कि हमारे बीच में एक ऐसा डिजीज आ गया है कोरोना, जिसके कारण क्लासेस में बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीजें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, दैट विल बी एक्सप्लेन बाय मी ऑन द बोर्ड बाय यूजिंग ए चॉक एंड द डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको पहले डायरेक्टली बता रहा हूँ सारा का सारा, और प्रॉब्लम जो आपको आ रही है वो मैं चैट बॉक्स में आपसे मंगा रहा हूँ। दिस इज द रीजन। तो अभी कोरोना पेंडेमिक है, कल को कोई और डिजीज आएगा। इससे पहले मलेरिया था, उसके पहले पोलियो था, कई सारे हम मैन मेड डिजीज, इबोला था, उसके बाद आपका ये बर्ड फ्लू आया, उसके बाद आपका ये
स्वाइन फ्लू आया, उसके बाद आपका ये डेंगू है, कई सारे ऐसे डिजीज है जो एटमॉस्फेरिकली क्रिएट हुए और जिन्होंने हमें बहुत नुकसान किया। तो क्लाइमेट को बचाने के लिए यू हैव टू मिनिमाइज द यूज ऑफ man-made sources and try to use the natural sources and natural thing to save the environment. अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दैट इज कॉल्ड, दिस इज द एसिड रेन। अब इन सब चीजों के कारण क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बाकी चीजों के कारण एसिड रेन बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। किसको अफेक्ट कर रहा है एसिड रेन, वो मैं बताता हूँ आपको। एसिड रेन कहाँ कहाँ अफेक्ट होता है, आपने कई बार सुना होगा कि ताजमहल जो है वो क्या हो रहा है, डे बाय डे गंदा हो रहा है, येलोइश हो रहा है, व्हाइट था पहले अब येलोइश हो रहा है। या कई सारे हमारे मोन्यूमेंट्स जो है वो खराब हो रहे हैं। आप जाएंगे उधर जो कोस्टल एरिया में जितने भी थे उसमें जो एसिड के कारण, रेन के कारण कई सारे बिल्डिंग्स, पुराने बिल्डिंग्स हमारे जो काफी अच्छी पॉपुलर बिल्डिंग्स थे वो सारे के सारे खत्म हो रहे हैं। वो किस लिए खत्म हो रहे हैं, ड्यू टू एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ SOx and NOx from combustion of fossil fuels which then mix with water vapor in atmosphere to form sulfuric and nitric acid respectively. The effect of acid rain, effect क्या क्या है एसिड रेन के वो देखिए। पहला है एसिडिफिकेशन ऑफ लेक, स्ट्रीम एंड स्वेल्स। ये क्या करता है, खेत को, उसके बाद जो आपका लेक है उस सबको एसिडिक कर देता है, जिस कारण से आप ड्रिंकेबल पानी तक नहीं उसमें से ले सकते। दूसरा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट, रिलीज ऑफ मेटल, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम विच वॉशेज अवे प्लांट न्यूट्रिएंट्स। एल्यूमिनियम भी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, ट्रीज, क्रॉप्स, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको भी खत्म कर देता है एसिडिक रेन। आप देख रहे हैं ये NO2 और SO2 हम लोग रिलीज कर रहे हैं, ये वाटर के साथ मिक्स हो रहे हैं, HO2 के साथ, वेपर के साथ, एंड दैट इट विल रिएक्ट एज एन HNO3 एंड H2SO4। इसके थ्रू ये रिएक्ट कम बैक कर रहा है। देन है किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ के बाद डीके ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड पेंट्स। मैंने पहले ही कहा कि जो ताजमहल है और ये सारी चीजें हैं आपकी, ये डे बाय डे खत्म हो रही। देन है हेल्थ प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी, बर्निंग स्किन एंड आईज। आप देखते हैं कभी कभी, मैंने पहले भी कोरोना के टाइम में ही बताया था कि जो आपका ओजोन लेयर बनता है, ओजोन गैस से भी हमारे आई में इरिटेशन आती है। तो ये सारी चीजें हैं। आपका जो टॉपिक है ये क्लाइमेट चेंज, उस क्लाइमेट चेंज में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और जब आप ये पूरा मेरा लेक्चर देख लेंगे, एक एक स्लाइड आप खुद रीड करेंगे और मेरी वीडियो ये जब आप देखेंगे, तो यू हैव द एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और उसके बाद जनरली जो क्वेश्चन आएगा आपका वो 4 नंबर या 8 नंबर में आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्लाइमेट चेंज। और कभी कभी जैसे 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है एसिड रेन क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज क्या है। उसके बाद आपका ये जो बाकी चीजें मैंने डिस्कस करी वो सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट आ सकती है। बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस है उसके हिसाब से इट्स अ 30-minute लेक्चर टू कवर ऑल दिस टॉपिक्स। तो उतने में मैंने ये सारा चीज कवर किया है। फ्यूचर में मैंने आपको पहले ही कहा है कि नेक्स्ट ईयर स्लाइड्स में भी अपग्रेड होगा। ये तो रहेगा ही, ये वीडियो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, बट द एडवांस वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल बी रिलीज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। जब मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा पूरा का पूरा, उसके बाद मैं इसी टॉपिक का एडवांस वर्जन रिलीज करूंगा। उसमें मैं आपको मोर डिटेल और मोर कंसेप्चुअल नॉलेज, जो आपको आगे और रिसर्च के लिए और इन सब चीजों के लिए मोटिवेट करेगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। बिफोर दैट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंजीनियर सॉल्यूशंस EE ऑल यूनिवर्सिटी, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा आपस में फ्रेंड्स ग्रुप में आप इसको सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्त इजीली उस सब्जेक्ट को समझ पाए और उस सब्जेक्ट में प्रॉपर अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए इन यूनिवर्सिटी एग्जाम अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू गाइज।